गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने वक्त निकाला और आज शाम को हम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया हमारे साथ गुजार के। आई एम श्योर आप में से कई सारे एनिमल लवर्स होंगे और जो एनिमल लवर्स नहीं है वो भी शायद इस शाम के बाद एनिमल लवर्स बन जाए। आगे बढ़ने से पहले या कुछ भी और कहने से पहले मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को, और वो है अजय कौल सर जी। अजय जी के साथ मेरा रिश्ता 28 साल पुराना है। मैं छोटी थी लेकिन मेरे फादर और अजय जी साथ में काफ़ी काम किया करते थे। अजय जी हमेशा प्रोत्साहित करते थे सबको, और उनमें से मेरे फादर भी एक ऐसे थे जो हमेशा इनकी एक कॉल पे पहुंच जाते थे, क्योंकि इतना कमिटेड इंसान, इतना कमिटेड लीडर, एक एक्टिविस्ट और हर अच्छी चीज़ में आगे आने वाले और करने वाले, सिर्फ बोलने वाले नहीं। मैंने ऐसे इंसान बहुत कम देखे हैं दुनिया में, और मुझे याद है कि मैंने मोहल्ला कमेटी में इनको ज्वाइन किया था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था मुझे उस उम्र में, जब मैं मेरे खेलने के दिन थे शायद। लेकिन मैंने अपना रुख, अपना रास्ता इन चीज़ों पे की तरफ कर लिया जहां मुझे दूसरों के लिए कुछ करने का मौका मिला, और वो मौका सिर्फ अजय जी की वजह से मिला। अजय जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो उनके लिए कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, और वो कभी भी सामने नहीं आते। मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ फिर भी वो, और यही बहुत ज़रूरी है कि करना और जताना ये अजय जी की डिक्शनरी में नहीं है। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पीछे इनका हाथ है, इनका आशीर्वाद है, और हर वो जगह खड़ी रहूँगी जहाँ पे एक अच्छा कॉज होगा और मन से वहाँ पहुँचने का दिल करेगा, क्योंकि वो हमारे साथ आशीर्वाद देते हैं हमें और हम आगे बढ़ जाते हैं। जानवरों के साथ उनका रिश्ता बहुत 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 अटूट है। मैंने बहुत क्लोजली देखा है, बहुत सालों से देखा है, और वही प्यार हम सबके बीच में भी है। जिस तरह से वो मूक प्राणियों की तरफ, मैं हेल्प नहीं कहूँगी, ये वर्ड उनके लिए सही नहीं है, वो दिल से दर्द महसूस करते हैं उनका। अजय जी, प्लीज़, वी वुड रियली लाइक टू गिव यू अ वेरी वेरी बिग हैंड एंड अ सल्यूट टू यू। Thank you so much. See you soon. We didn't leave Neil and we asked him to please see him right now, there and then, and no later than this evening. We welcome Neil Nitin Mukesh, who has taken out his time for all animal lovers, us, Ajay ji, and we really, really thank you from the bottom of our heart. Asha ji, thank you so much. To begin with, I think I just want to say that I'm a big fan. So I have met you in person before also, but I think this is the first time that I'm getting this opportunity to really express how big a fan I am. And there are now, of course, many more reasons that have added to that list of me being a fan, apart from the lovely body of work that you have. I think this is one side of yours that I was completely unaware of. So you have a fan for all eternity, not just because of the mesmerizing roles and the characters you portrayed on screen, but also because of the kind of human being you are. So thank you for giving me the dais, and thank you for this opportunity to come and address this beautiful crowd who's taken time out today. Ajay sir, what do I tell about a man who I just said has a golden heart? I've known Ajay sir since about, I think, 5-6 years now, and every cause of his somewhere just connects with me on a very deep level. Every time he shocks me as a person with so many endeavors, so many directions that you can just mislead probably people that where to catch you from.
So I think that unique quality of yours has always been very magnetic, and I've always been very attracted to you as a human being, and I think you genuinely have a golden heart. This cause, of course, animal cruelty is not to be taken lightly, is something that I personally do not endorse at all because it's not fun. You know, we just saw a couple of videos played out there, and you saw a lot of young teenagers who thought that it was fun. Throwing off a dog from a couple of heights from a building top, dragging it by the neck, it's not fun. That's not entertainment. You want to get entertained, go watch a movie, go pay a price to go into a theater. That is not entertainment, that is life. You cannot take any life in your own hand except yours. Yours is also a gift, so you should cherish it. And I completely endorse this and support this cause because I myself am a father, not only of my darling daughter Nurvi, but before Nurvi, I had a baby at my house called a Maximus, who's now 6 years old. And he was literally born in my hand. I was shooting for Prem Ratan Dhanpayo, and right next to the set there was a really nice farmhouse, and a friend of mine was breeding his dogs out there, and I just couldn't resist but get Maximus home. He was born in front of me, and ever since then I'm a parent, first to Maximus and then to Nurvi. So of course, as a parent and a dog lover and an animal lover, for me this is brutality which I don't endorse at all. And that's why my endorsement with you and your support with your cause is very, very strong, Aisha ji, Ajay ji, and the entire team, of course. I just feel that what Ajay sir has also gone ahead and now has committed of having a cemetery is something extremely noble. Recently, my wife and her parents lost their, pet, Hugo, and it was really difficult. So I know how difficult it is to get a space for them, to give them that respect and that dignity. So thank you so much for making me a part of this family of yours and making me a part of this really important day. It really means a lot. Thank you. Thank you, guys. Thank you. हम उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते जो हमें सूट नहीं करती। कितनों को फर्क पड़ता है कि कुत्तों को कोई लाठी से मार रहा है या उन्हें गाड़ी के नीचे कुचला जा रहा है, यहां तक कि कुत्तों का रेप किया जा रहा है बार बार। कितने किस्से हैं। हमारे पशुओं के मुंह में पटाखे फोड़ दिए जाते हैं, उन्हें छतों से फेंक दिया जाता है और या फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। हाल ही में आप देखिए पूना का वो किस्सा जिसमें जंगली भैंसा जो इंडियन बाइसन है, उस बेचारे की किस तरह से मौत हो गई। ये कुछ ही दिनों पहले की बात है। क्या गलती थी उस बेचारे की? क्या ये गलती थी उसकी कि वो इंसानों के बस्ती में आ गया? कितने लोग इस क्रूएल्टी को रोकते हैं हम में से। हो सकता है कि आप जानवरों की तरफ क्रूर व्यवहार ना करते हो, लेकिन अगर आपकी आंखों के नीचे, आंखों के सामने, नजर के सामने इस तरह की क्रूएल्टी हो रही है और आप उसे रोक नहीं रहे हैं, आसपास की क्रूएल्टी को रोक नहीं रहे हैं, तो एक अच्छे नागरिक होने का प्रमाण नहीं है ये। Civilized people don't behave like this. Who has decided that this kind of violence is the answer when it cannot even be a question? इस प्लैनेट का सबसे सुंदर शब्द जानते हैं आप क्या है? अजय जी को मालूम है।
सबसे प्यारा शब्द है अहिंसा। इस शब्द की उपज हमारे देश भारत में से हुई थी। अहिंसा, नॉन वायलेंस टू एनी लिविंग बीइंग। ये शब्द हमारे चरित्र का वर्णन करता है। इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट प्रेशियस थिंग, लाइफ, जिंदगी। यही भारत में से, हमारे भारत में से एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द उपजा था और वो था सत्याग्रह। इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, सत्य पर जोर देना। हम सब की आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आइए एक साथ जुड़ें और इस सत्य पर भी जोर दें कि हमारे जानवरों की जिंदगी का भी कोई महत्व है। अपनी आवाज को एक दूसरे की आवाज के साथ जोड़ें ताकि हम सब की आवाज और बुलंद हो। इन कानूनों को सख्त और कड़ा करने का वक्त आ गया है। इन कानूनों को बदलने का वक्त आ गया है। अपने जानवरों की आवाज को अपनी अथॉरिटीज तक पहुंचाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इनका भी हक है। और एसएएस ये एनजीओ ने जो मुझ जैसे एक छोटे इंसान को यहाँ बुलाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारी एनजीओ है जो एनिमल्स के लिए काम करती है, मगर सिर्फ काम करती है, आगे कोई नहीं आता है। जैसे कि बाद में आपने देखा, आयशा जी ने एक बात बताई कि बहुत ऐसे लोगों ने जानवरों को, किसी को जलाया है, किसी को टेरेस पे से ऊपर से फेंका है, किसी ने लाठी से मारा है। ऐसे बहुत सारे बेजुबानों को मारा गया है, मगर कुछ कानून नहीं, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं। बस एक एनजीओ रजिस्टर करके रखा, बस उसके नाम से बस चलते जा रहे हैं, मगर उसके लिए आवाज़ उठाएगा कौन? कोई नहीं। तो ऐसे एनजीओ चाहिए जो आवाज़ उठाए, ऐसा कुछ कानून आवे जिसके लिए वो जानवरों को भी इंसाफ मिले। आज देखो, एक जानवर मरने के बाद कहाँ जगह है उसको दफनाने के लिए? किसी ना किसी को बाहर से एक बंदे को बुलाते और उसको बोलते हैं, ले 50 रुपये, इधर इसको किधर ना किधर तो फेंक क्या करके। आपके घर में जब आप जानवर को पालते हो ना, तो एक फैमिली मेंबर होता है। आज मेरे घर पे भी 3-3 डॉगी है, उनको बच्चे जैसा संभालता हूँ मैं। जैसा मेरे घर पे मेरा बेटा है ना, वैसा उसको बच्चे जैसा संभालते हैं। कोई कुत्ता भी बोलेगा ना तो चिढ़ आ जाता है। तो आप सोचो, अगर हम हमारे घर में पालते उनको बच्चा समझते, तो ये रोड पे भी तो है, वो भी तो जानवर ही है ना, उनको भी बच्चा समझो ना। उनके लिए भी थोड़ा सा इंसानियत बताओ। जैसा आप आपके बच्चों के लिए इंसानियत बताते हो, उनको इतना प्यार करते हो, तो उनके लिए भी बताओ ना। नहीं बताएंगे। हमको क्या करना है, या हमको क्या करने के चक्कर में कानून नहीं बनता है। तो इन्होंने जो कदम उठाया आगे, जो मुहिम उठाई, उसके लिए मेरा इनको बहुत सारा सपोर्ट है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप लोग को भी बोलता हूँ, जितने भी लोग इनके साथ ये वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करो। ये जानवरों को इंसाफ दिलाओ, एक कानून लाओ, और जो दरिंदे ऐसा काम करते उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बस, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मैं इंडिया आया तो मुझसे मिलने आई थी वो, तो हम लोग बैठे थे यहाँ पे चाय कॉफ़ी करके, एक यहाँ पे बाहर आपको पता होगा यारी रोड पे है। तो हमारे यहाँ तो स्ट्रीट डॉग को लोग लात मार देते, ये मार देते, ऐसा होते रहता है। वो हम दोनों बैठे थे, बाहर से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई, तो एकदम से वो उठ के बाहर आ गई और वो देखी तो वो बाहर किसी ने उसको लकड़ी से मारा था। तो अंदर आई, बोले जस्ट प्लीज कम आउट। मैं बाहर आया, मेरे को बोलती इसको भी ऐसे ही पैर पे लात मारो जोर से जैसे इसने कुत्ते को मारा है। और मैंने सेम, मतलब मैं तो हाथ का थोड़ा छूटा हूँ, आपको पता ही है। फिर मैंने उसको वैसे ही एक लात मारी तो उसको खुशी हुई।
तो उस दिन मुझे समझ में आया कि यार पेट लवर होना कितनी बड़ी बात होती है। कि और मैं कहूँगा कि फैशन के लिए, जैसे अभी सुप्रिया जी ने कहा कि लोग स्टेटस सिंबल के लिए कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या दूँ, तो कुत्ता दे देता हूँ, बिल्ली दे देता हूँ। मेरे भाइयों प्लीज़, ऐसी कुछ भी चीज़ गिफ्ट नहीं दी जाती है कि सामने वाला उसको ले लिया, 2-4 दिन के लिए रख लिया, उसके बाद फिर वो ढूंढ रहा है कि अरे मेरे पास एक बिल्ली है, चाहिए क्या, मेरे पास एक कुत्ता है, चाहिए क्या, ये बच्चा है। ऐसा नहीं होता भाई। अगर कोई तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारा खुद का बच्चा हो, उसको फिर कैसा प्यार करते हो, वैसा ही प्यार इसको भी करना पड़ेगा, वरना इसको लो ही मत ना। कौन आपको बोलता है लेने के लिए। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हमारे यहाँ पे कानून बड़ी बड़ी चीज़ों पे है, इस पे है, उस पे, लेकिन इस पे जो कानून आयशा जी चाहती है वो कानून होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो ये बेजुबानों के साथ इस तरह का बर्ताव करता है, हिंदुस्तान में तो कहीं भी हो तो हमें प्लीज़ फ़ोन करिएगा। ठीक है, हमारे पे 1-2 केस और हो जाएंगे तो हमको टेंशन नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे केस है। लेकिन आप मुझे फ़ोन करना, आप मुझे फ़ोन करना, और आप देखना भी मैं खाली बातों का नहीं, हाथों का भी शेर हूँ। तो उनको भी सिखाया जाएगा कि कैसा लगता है जब बेजुबान को कोई मारता है इस तरह से, और ऐसे ऐसे वीडियो बना के मारते हैं। इन लोगों को वैसा इनका भी वीडियो बनाना चाहिए ताकि इनको पता चले, और डॉग्स लवर्स को इन चीज़ों में आगे भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें मारूं और फिर मुझे पुलिस पकड़ ले तो आप लोग घर में ही बैठे हो, बाहर निकलो थोड़ा सा, क्योंकि तादाद दिखाना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आप लोग इस चीज़ के लिए तादाद दिखाओगे तो लोग, इस पे कानून भी आएगा, लोग ये चीज़ें बंद भी करेंगे और लोग समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। क्योंकि देखो, इंसानियत सबसे पहला धर्म है इंसान का, उसके बाद पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस बात को सीरियसली लीजिएगा, और मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को दूर दूर तक पहुंचाइएगा ताकि लोगों को समझ में आए कि अपना बच्चा जब खो जाता है, अपने बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो उसी तरह इनको भी उतनी तकलीफ होती है जितनी एक इंसान को होती है, बल्कि ये लोग तो इतनी तकलीफ झेलते हैं। मैं इस कॉज के साथ में हूँ, मेरी टीम अल्लाह के बंदे इस कॉज के साथ में है, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो सब आपके साथ है आयशा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बात तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज आयशा जी, अजय सर, हम सब यहाँ पे आज मौजूद। और मेरा मानना ज़रूर है कि यहाँ स्ट्रिक्ट लॉज ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो हम शायद पिछले 2.5 घंटे से हम शायद एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं यहाँ पे, रीआइटरेट कितनी इन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली, अभी शायद पब्लिक भी बोर हो जाएगी अगर वापस यही चीज़ बात करें, बट ज़रूर होनी चाहिए। आई मीन उनमें भी जान है, उनमें आवाज़ नहीं है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जो हमारा हैशटैग है कि इनका भी हक है। तो एक किस्म से ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रीज़न वाई टुडे एवरीवन सिटिंग आउट हियर एंड आर ट्राइंग टू वॉइस दिस ओपिनियन वेरी स्ट्रांगली, and it's only because they have life, and of course there are some animal lovers like me, there's Ejaz, all of us out here who are present out here. There is a reason why we've chosen to come here, support Aisha ji. There was an incident that happened with her in her family with her little baby. It cannot happen to your own child also, right? So if it happened to somebody who belonged to your own family, would you be silent? Unfortunately वो नहीं बात कर सकते, तो ऑफ कोर्स उनके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, और वो हम कर रहे हैं। सर, और एक मुद्दे के बारे में यहाँ पर बात की गई, जहाँ पर जो है डॉगी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो क्रीमेशन होती है उसको लेकर जो है जगह उनको मिलती नहीं है, तो वो कितनी खराब बात है या फिर सैड बात है? सी इट्स अ सैड बात, आई मीन खराब बात या अच्छी बात, ये मैं बहुत छोटा इंसान हूँ ये सब एक बताने के लिए, बट इट्स अ सैड सिचुएशन के कोई कदर नहीं है। फॉर एग्जांपल यू नो, अब हाल ही में मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे मदर इन लॉ के फैमिली में उनका जो बच्चा था, बिग डॉग, ग्रेट डेन ह्यूगो, वेरी क्लोज टू माई वाइफ, टू माई मदर इन लॉ, माई फैमिली, एवरीबॉडी,
he passed away. But there was no place in the middle of the night where to go, how to reach out to somebody. And really one did feel very helpless. Now, but only those people who treat them like family members can understand what the situation at that time really one goes through. Of course, आज अजय सर जो कर रहे हैं, एक सेमेंट्री अगर मुंबई शहर में, सर ने भी अभी कहा कि महाराष्ट्र में एक नहीं, हर जगह हर इलाके में अगर एक ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसानियत नाम ही बदल जाती है. यू नो, दिस ऑटोमेटिकली देयर इज लाइफ दैट कम्स टुगेदर विद हैप्पीनेस. यू नो. सर, अजय सर ने और एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर 3000 बच्चों की जी. फीस को माफ कर दिया गया है. ऐसी पहली स्कूल होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी था. इनके बाद इनफैक्ट पैंडेमिक के चक्कर में मैं जानता हूँ, मेरा ब्रदर इन लॉ खुद एजुकेशनिस्ट हैं. मेरी वाइफ की फैमिली एजुकेशन से बिलोंग करती है. विबगियर हाई स्कूल जो है उनका स्कूल है. तो मैं जानता हूँ कि बच्चों के साथ क्या रहा है, हाउ मच ऑफ अ स्ट्रेस द पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू. आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, बिकॉज ऑफ द वर्क मेनी इंडस्ट्रीज हैव गॉटन हिट बैडली. Individually speaking, families are not being able to. Now in that, if there's a big support, education plays a very big role in the upbringing of a family. आज मैं एक बाप के नाते मैं बोल सकता हूँ, मेरी बेटी है, मगर जैसे ही पैदा हुई मेरा पहला सबसे ज़्यादा टेंशन था कि स्कूल कौन सा जाएगी. अभी 2.5 साल की भी नहीं हुई, छोटी है इतनी बेचारी, और मेरा ऑलरेडी स्ट्रेस है कि अच्छा फ़ीस कितना होगा साल का, अच्छा यहाँ ट्यूशन कौन सा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इतने स्ट्रेस में अब 1 साल अगर आदमी काम नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे अगर आप इतना बड़ा अगर जेस्चर दिखा रहे अजय हैं सर, तो जी हाँ, ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट एवरी फैमिली विल चेरिश अ लॉट. एजाज, आप क्या कहना चाहेंगे, जो सर ने जेस्चर दिखाया है, 3000 बच्चों की फीस माफ कर दी गई है 3 महीनों के लिए, पहली स्कूल है ये, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस पे सबसे पहले मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि बच्चों की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए. मेरे पास, क्योंकि मैं एनजीओ चलाता हूँ अल्लाह के बंदे, तो मेरे पास कुछ लोग आए, सम 40-50 पेरेंट्स, के हमको स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं और हमारे पास तो है नहीं, हम देंगे कैसे. तो फिर मैंने एक लाइव किया उनके साथ मिलके, और एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे महाराष्ट्र के सीएम और सब स्कूल वालों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ऐसे पैंडेमिक में जिनके पास खाने को नहीं है राशन, तो आप उन लोग से इतनी सारी फ़ीस मांगोगे. क्या होता है, माँ बाप जब बच्चों की बात आती है तो वो अपने जेवर बेच देते, अपनी गाड़ी बेच देते, अपना कलेजा बेच देते, जो उनके पास है वो बेच देते, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी पढ़ाई वो कर सके. उसके बावजूद बच्चे जोमेटोज़ में काम कर रहे हैं. उन माँ बाप के कलेजों पे क्या बीतती होगी वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ चलता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ. हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ बदलनी चाहिए. अजय सर ने जो काम किया है बच्चों की फ़ीस माफ़ करके, वो एक हीरो वाला काम है और मैं उनको हीरो मानता हूँ. आई एग्री. इसके अलावा अजय सर और आयशा मैम ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका खुद का एक एनजीओ भी है, तो आप जो है इस टॉपिक को भी सबके सामने लाना चाहेंगे. जैसे आप जानते हैं कि आप लाइव आके सब कुछ बताते हो आप सबको, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए. अभी मैं जैसे कि यहाँ पे वादा किया कि एजाज झूठा वादा और कोई भी काम आधा नहीं करता. मैं अभी आयशा जी के साथ में हूँ और बहुत जल्दी आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा मैं जो वो एनिमल के साथ होगा वैसा ही उसके साथ करके मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद लाइव आऊँगा और कहूँगा कि ये आज से मैंने इंसेंटिव चालू कर दिया है और मैं आयशा जी के साथ हूँ. और हाँ, छिड़ गए आंदोलन, क्योंकि अब जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ हम सब है. टिट फॉर टैट. आई प्रॉमिस यू अमिता जी, मैं वीडियो सबसे पहले हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में सबसे पहले वीडियो मेरा होगा वो, और बहुत जल्दी होगा. अभी हम लोग, मैं आयशा जी के साथ जुड़ चुका हूँ, तो ये समझ लो मैं अजय जी और आयशा जी के साथ इसमें जितने भी वो फंक्शन होंगे मैं वक्त निकाल के आऊँगा इनके पास. थैंक यू सो मच. अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है, उसको लेकर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल पाए. नहीं, बिल्कुल जो ये काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा काम है, बड़ा उम्दा काम है. और आज के ज़माने के अंदर लोगों के लिए, इंसानों के लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता, लेकिन आज इन लोगों ने ख़ास तौर पर एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और उसके लिए 100% राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो भी ठहराव लाना है, जो भी मंजूरी लाना है, इसके ऊपर जो जो योजना
के तहत उनको किस तरीके से फ़ायदा दिलाना है, बिल्कुल मैं इनके साथ में हर कदम पर इनके साथ खड़ा रहूँगा। जैसे एजाज़ भाई ने भी कहा कि अभी हम जो लोग जिस जानवरों के साथ जानवर जैसा बर्ताव करते हैं, इंसान रहने के बाद भी उस तरीके से हरकत करते, तो वहाँ अगर छड़ी आंदोलन करना पड़े तो लात मारना पड़े तो भी हम लात मारेंगे। मारने के लिए तैयार है। हाजी अराफा से उसमें भी आपके साथ में बिल्कुल खड़ा रहेगा हर एक भूमिका में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये काम के अंदर जो कोई भी साथ में खड़ा रहेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमानी गायब सी मदद आएगी, क्योंकि ये नेक काम है कि आज जो जानवर बोल नहीं सकता, बात कर नहीं सकता, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, एक घिनौनी हरकत की जा रही है। जैसे आयशा जी ने भी मुझे कहा कि वो सारी हरकतें अगर वो उसी के साथ अगर हो तो ऐसे लोगों की तो धुलाई होनी चाहिए। कानून तो अपनी जगह पे कानून काम करेगा ही, उसके लिए जो सरकार से जो मदद देना है, मैं सुनील केदार साहब के पास इनको लेके जाके कैबिनेट मिनिस्टर से बात करके बिल्कुल ले जाऊंगा। आशीष शेलार जी साथ में रहेंगे, देवेंद्र जी को मैं बात करूंगा, ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो आदित्य ठाकरे जी के पास जाके बात तो ज़रूर रखेंगे ये सारी बातें। लेकिन जो जिस तरीके से ये होना चाहिए प्रैक्टिकल, क्योंकि इतने सालों से लोग अपने अपने घरों के अंदर एनिमल्स को पालते रखते, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जब अगर उनकी डेथ होती है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। तो ये जो सोचना, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं इन सभी लोगों को सलाम कहूँगा कि जिस तरीके से जो ये सोचे और एक पहल शुरुआत की, 100% इसका नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा और आने वाले कल के अंदर ज़रूर इसका एक अच्छा रिजल्ट मैं दूंगा। 100% इसके ऊपर जाके सरकार से अच्छी योजना भी लाएंगे और 100% इसके ऊपर एक कानून कड़ा किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वो जानवर बोल नहीं रहा है तो उसके साथ इस तरीके से हरकत हो रही है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी लगाम बैठनी चाहिए। बिल्कुल इनके साथ में बहुत जल्दी जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी होने दो, एनिमल्स हस्बेंड्री मिनिस्टर होने, बिल्कुल जाके उनको मिलके ये काम के अंदर मैं भी एक इनका हिस्सा बनकर काम करूँ। थैंक यू सो मच। मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होने की वजह से एनिमल क्रूल्टी ज़रूर होती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अचरज की बात यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि लॉज हैं क्या। तो ये एनिमल क्रूल्टी जो हो रही है, जानवरों के साथ जो एक बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है, हिनियस क्राइम्स किए जा रहे हैं, ये एक मानसिक अवस्था की प्रॉब्लम है। बेसिकली मुझे लगता है कि ये बीमार मानसिक अवस्था के लोग हैं जो जानवर के ऊपर अपना बल दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद उनमें से 80% लोगों को लॉज के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन हम क्यों लॉज के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों लॉज की मांग कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये लॉज स्ट्रिक्ट होंगे तो इस बारे में शोर मचेगा, इस बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो लोगों को इस बारे में पता लगेगा कि हाँ, ये काम करने से पहले हम 10 बार सोचें। अभी कल के पेपर में मैं पढ़ रही थी कि पुणे में किसी ने एक छोटे से सड़क से पपी को उठाया और जाके उसको छत से नीचे फेंक दिया और उसको मार दिया। आप मुझे बताइए किस तरह की मानसिक अवस्था है और क्या मिला आपको करके? अगर वो कुत्ता आपको रो के आवाज़ कर रहा है या वो जानवर आपको तो इसका मतलब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है ना। तो आप कैसे, हम इस देश की जनता, मैं आपसे पूछती हूँ, कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इस आप प्रॉब्लम को? अगर हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं आगे आने की, हम जैसे लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो लड़ नहीं पा रहे हैं, जो एक FIR नहीं कर पा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए एक आम आदमी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। अगर हम मिलके इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं और इतनी माननीय हस्तियाँ इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो किस लिए कर रही हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं इन मूक जानवरों के लिए, और उनके जानवरों को मार दिया जाता है, उनके पेट्स को मार दिया जाता है या स्ट्रेस को मार दिया जाता है, वो बेचारे एक FIR तो छोड़िए, एक NC कराने के लिए पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पा रहे हैं, तो थक हार के वो हार मान जाते हैं। ये मुद्दा हम उन सब लोगों के लिए उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर, जितनी ताकत हमारी होगी उतनी जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैम, इस क्राइम का जो जुर्माना है वो भी सिर्फ 50 रुपये है महज, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जैसे
ने पहले आप पूछिए नितेश जी, हमारे जी। सो ये जो जुर्माना है, इसमें आप अगर ये अपराध पहली बार करते हैं तो मात्र 25 रुपये है, दूसरी बार में ये 50 रुपये होके और तीसरी बार में 100 रुपये पे और 3 महीने की जेल होके ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर सेक्शंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हैं और जो कॉग्निजेबल हैं वो बेलेबल हैं। सज़ा जो भी मिलती है बहुत ही छोटी होती है, जो कि एक जानवर जिसकी जान गई है वो जस्टिफाई नहीं करती है। और ये मैंने और आयशा जी ने इसी मुहिम को इनके भी हक से आगे बढ़ाया है, जहाँ पे हम ये अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये जो सज़ाएं हैं इसको स्ट्रिक्ट किया जाए। बट क्या ये जान, किसी की भी जान वो 100 से 10,000 भी हो जाता तो वो जस्टिफाई नहीं करता। बट लोगों में थोड़ा डर रहेगा, लोग थोड़ा इस चीज़ से पीछे हटेंगे, तो बस यही चल रही है हमारी लड़ाई। मैं डेफिनेटली ये मानती हूँ कि भी लोग डरेंगे, पर लोगों को डराना ही काम नहीं है। ये लॉज का स्ट्रिक्ट होना मतलब ये है कि आपके अंदर एक इतना ज़्यादा भय होना चाहिए कि आप जानवर पे अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। आपको अगर मानसिक तकलीफ़ है तो आप पागल खाने जाइए, कहीं भर्ती हो जाइए, इलाज कराइए अपना। लेकिन आप किसी मूक प्राणी के ऊपर उसका रेप करते हैं। आप सोचिए ज़रा, आप 2 मिनट सोच के देखिए, कुत्ते का रेप किया गया है, एक बार नहीं, कितने किस्से हैं, और बहुत हाल ही में हुए किस्से। नूरी का किस्सा सुना होगा, प्रेस में काफ़ी आया भी था, मुंबई का ही किस्सा है ना। अब सोचिए कि क्या हो रहा है, मतलब किस वर्ल्ड में रह रहे हैं। फिर यही लोग, आपके बच्चों के ऊपर चाइल्ड मोलेस्टेशन होगी, विमेन रेप्स होंगे, ह्यूमन मर्डर्स होंगे, तो कहाँ रोकना चाहते हैं आप? पहले जड़ को रोकने के लिए सब साथ आएँ। और ये तनुश्री और सुप्रिया जी इतने सालों से हमारी टीम में काम कर रहे हैं, ऑन फील्ड जाते हैं रेस्क्यू के लिए। हम तो आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हम बिहाइंड द सीन्स काफ़ी, मैं ख़ास तौर से, क्योंकि वो क्रूएल्टी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं जो फील्ड पे जाके इस क्रूएल्टी को देखते हैं। तो अगर हम सब साथ नहीं आएंगे और नितेश जैसे लोग जो लिटिगेशंस में और कोर्ट तक ड्रैग करते हैं कि जस्टिस मिले, वो जानवर जो इनका कोई भी नहीं लगता एक्चुअली। देखिए सड़क पे कोई किस्सा हुआ और ये लड़ते हैं जाके, हम सब जने उसके पीछे भागते हैं। तो ये एक जागृत होना ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि सब जुड़े इसमें, कहना ही ना पड़े। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।